Hello everyone, this is Gyanendra Verma. Today we are going to start with a very famous topic that is database concept. बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि डेटाबेस आखिर है क्या, कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझने के लिए है। दैट मीन्स कि आपको एक सिलेबस के हिसाब से उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो लेट्स पहले हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे एज फॉर एग्जांपल डेटाबेस इज जस्ट अबाउट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। बट अगर इतना कहेंगे तो काम नहीं चलेगा। डेटाबेस इज बेसिकली अ कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम। अब कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो डेटाबेस के बहुत सारे रोल है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन एरियाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि डेटाबेस में हमारे रियल लाइफ में ये कैसे इंटरेक्ट करता है एंड देन आफ्टर उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटाबेस यूज्ड इन रियल वर्ल्ड। हमारे रियल लाइफ में डेटाबेस का यूज क्या है और कहाँ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डेटाबेस आर eventually used in business application and financial transactions. However, database are not just used for business application. कहने का सेंस डेटाबेस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए है, ऐसा सोचना गलत है। डेटाबेस इज बेसिकली स्टोरिंग योर डेली ट्रांजेक्शंस। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, एज फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, आई एम टेकिंग अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज अ ट्रांजेक्शन that is going to be record keeping inside the copy or in the computer system. That is the transaction. Same way, whenever you are going through any set of medium where transactions are happen, like grocery stores, bank, video rental store, favorite clothing store, all uses database to keep track of customer inventory, employee and accounting information. That means in our day-to-day life, everywhere transactions are created. We are actually transacting number of things in our day-to-day life, and all these transactions are record keeping. Example के लिए आपके पास कॉल आते हैं, वो भी एक डेटा ट्रांजेक्शन है, उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। मैसेजेस करते हैं आप, चैट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस. So next one, database allows for data to be stored quickly and easy and are used in many aspect of our daily life. जो मैंने just बोला आपको, नॉर्मली अगर देखेंगे डेटाबेस में क्या काम करते हैं, तो डेटाबेस में नॉर्मली अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है इसको, तो डेटाबेस एक्चुअली हैव four basic operation. Normally first one is that is actually called CRUD operation. CRUD operation क्या होता है, तो here the CRUD operation identify, just a second, yes, CRUD. Here CRUD stands for C for create. Basically using this particular operation you are creating a structure of the database. R for read, that is reading of created data structures or data. Then after U for update, means whatever the correction you have to done with the help of update operation. And the last one is D for delete. Basically this operation is prohibited because as we know that every data is precious, so it should not be removed. So D, that is the delete operation, should be prohibited from the database operation. It should be used indifferently to identify the some set of data that is not going to be used. Like you can set like providing 0 1 to the data. I will discuss this later, but CRUD is a basic part. You must have to go through it. Whenever you are going to create a database, you are working with the database, you always have to keep in mind that there is a term CRUD that is applied in the database operation, and that is essential. एक्चुअली ये टॉपिक मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये फंडामेंटल इसलिए मुझे बताना पड़ा. नेक्स्ट,
नेक्स्ट वन इज नॉर्मली किसी भी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका हिस्ट्री जानना चाहिए. एक्चुअली बिफोर 1960 whatever the database system we are using, that is paper based or manual based system. Until 1970 we do not have any proper database system in the computer and in the real time world. Whatever the operation we are doing, that is based on paper. And in the 1970 there is a person who come with the idea of database terminologies, that is EF code. EF code is the one who give the idea of relational database. What actually the meaning of relational database, we will discuss this later. What actually it do. Next point, computer system replace outdated form of paper communication and paper file storage. जैसे कि 1970 में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ईएफ कोड ने दिया तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हमारे सोसाइटी के अंदर. Our organization become paperless and computerized. That means digitization is on the way. Next, computer databases were used as a way to store and manage large amount of information digitally. कहने का सेंस, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स आज के डे में कर रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटराइज हैं. जैसे कि आपका वेबसाइट, आपका चैट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका यूट्यूब अकाउंट, आपका मोबाइल फोन, फोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाटएवर जो भी आप अपने रियल लाइफ में करते हैं एज अ जनरल पर्सन, आपके सारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं. लेकिन ये ऑटोमेटिक हो रहा है और 1970 में हर एक चीज को ऑटोमेट करना पड़ा. दैट मीन्स कि हम लोग पेपर बेस्ड सिस्टम से मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में आ गए विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट गिवन बाय ईएफ कोड. ये ईएफ कोड आपको याद रखनी है. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कंपनीज बिगन टू यूज डेटाबेस फॉर अ मींस ऑफ इन्वेंटरी ट्रैकिंग, कस्टमर मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पर्पसेस. सो जितने भी तरह के काम है जो कंपनीज करती है, जैसे कि इन्वेंटरी ट्रैकिंग, क्या गुड्स परचेज किया, क्या गुड्स हमारे स्टोर में है, कितना सेल हुआ, कितना हमारे पास इनकम हुई, व्हाट एवर ट्रांजेक्शंस, दैट इज इन्वेंटरी टेकिंग. नेक्स्ट, आवर कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम. दैट मीन्स who is the customer who is frequently accessing my shop or using the services given by us. Then accounting purposes, what are the debit and credits are there. So each and everything is going to be digital after 1970, and that is the term given by EF code that you have always must have to remember whenever you are writing about relational database or database concept. You must have to use EF code. EF code is also known as father of relational database management. Next point, significance. What is the significance? क्या importance है database का? First importance क्या है? The move from paper to computer database basis was a huge leap of in information management and storage. नॉर्मली अगर हम देखें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमने पहले जो शुरुआत करी वो कैसा था, वो था हमारा पेपर बेस्ड सिस्टम, और आज का सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज्ड है. तो जैसे ही हमारा डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम लोग पेपर बेस्ड सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में मूव करते हैं अपने आप को. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटाबेस आर मच मोर एफिशिएंट देन पेपर स्टोरेज इन दैट दे take up less space, are easily accessed by multiple users at once, and can be transformed long distance with virtual no delay. Means क्या है, as for example, मेरे स्कूल में मान लेते हैं कि हमारे पास 6000 ऑफ स्टूडेंट है. अब एज्यूम करते हैं कि हर स्टूडेंट का अपना एक डायरी है. अब उस डायरी को मुझे रिपोर्ट करना है दिल्ली में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको ट्रक में भरवा के ले जाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करानी पड़ेगी. लेकिन आज के डे में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने भेजना है, आई जस्ट हैव टू क्लिक एंटर की एंड ऑल डेटा इज गोइंग टू बी सेंड directly, because we are working with the computerized database system, and that is a computerized record keeping system too. अब आगे क्या है, the use of database allows for the raise of corporate infrastructure, credit कार्ड प्रोसेसिंग, ईमेल एंड द इंटरनेट. ये एग्जांपल है जिसके थ्रू कि आप अपने इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप प्रोसेस करा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटाबेस अलाउज फॉर डेटा टू बी स्टोर्ड शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग हाउस
housed in one location or a physical piece of paper. अब जैसे नॉर्मली पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी इंफॉर्मेशन होते थे उसको एक स्टोर में रखते थे, ठीक है, सिंपल इसको समझा रहा हूँ। तो आप स्टोर में रखते थे, एक जगह हम लोग इकट्ठा करते थे एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको रिट्रीव करते थे, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते थे। दैट इज वेरी टीडियस जॉब। आपको एक काम को करने में एक दिन भी लग सकते हैं, एक सप्ताह भी लग सकते हैं और एक महीना भी लग सकता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जो कि दूर हो गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये काम कैसे करता है, फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डेटाबेस? बेसिकली डेटाबेस यूज्ड just about everything including बैंक, रिटेल, वेबसाइट एंड वेयर हाउसेस। मैंने कहा सेंस कि डेटाबेस आपके पास आपके रियल लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होता है, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, नॉर्मली लोग जानते हैं कि डेटाबेस मींस बैंकिंग सिस्टम, डेटाबेस मींस रिटेल सिस्टम, डेटाबेस मींस वेबसाइट एंड वेयर हाउसेस। तो व्हाट एक्चुअली द बैंक डू विद द डेटाबेस? In the bank uses database to keep track of customer account balance and deposit. So whatever the information you are going to create or you have created is going to be tracked with the help of the database. जैसे मैंने एटीएम से पैसा कब निकाला, हमने कहीं पे पॉज किया है, पॉइंट ऑफ सेल किया है, पेट्रोल खरीदा है या फिर बिग बाजार गया या व्हाटएवर। तो जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के थ्रू बैंक के पास चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिटेल। रिटेल स्टोर्स कैन यूज डेटाबेस टू स्टोर प्राइसेस, customer information, sell information and quantity on hand. Means रिटेल स्टोर के पास ऑन हैंड कितने प्रोडक्ट हैं, स्टोरेज में कितने प्रोडक्ट हैं, दैट मीन्स कि गुड्स है, कितना सेल किया, कौन से कस्टमर है जो इनके यहाँ फ्रिक्वेंटली आते हैं या नंबर ऑफ कस्टमर क्या है। देन आफ्टर सेल के इंफॉर्मेशन, आज कितने सेल हुए हैं, कितने क्वांटिटी हमने सेल किया है, कितने पैकेट्स हमने सेल किया है। देन आफ्टर करंट हैंड में क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डेटाबेस के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट। अब जैसे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप ईमेल यूज करते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं। सो व्हाट एवर योर डेटा इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस इज गोइंग टू बी मैनेज बाय द डेटाबेस सिस्टम। जैसे अभी मैं इस यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ भी हमारा डेटाबेस मैनेज हो रहा है, यानी कि यूजर का इंफॉर्मेशन है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, देन आफ्टर लॉग्स है कि कब कब मैंने डेटाबेस को यूट्यूब को एक्सेस किया है, अपने आईडी को एक्सेस किया है, और हमने कौन कौन से कंटेंट बनाए हैं। सो व्हाट एवर द डेटा you have created over the website is going to be managed by the database system. Next one is that is warehouses. Warehouses क्या होता है? तो warehouses uses databases to manage inventory level, storage location. Databases are used anywhere that data need to be stored and easily retrieved. कहने का सेंस warehouse को आप डायरेक्टली इस तरीके से कह सकते हो कि ये एक बड़ा दुकान है जहां पे आप डाटा को स्टोर करते हैं। दैट मीन्स कि कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, आप उसको स्टोर करते हैं, तो वो इतना बड़ा लार्ज साइज में होता है कि आप उसको याद नहीं कर सकते हो, वो हेक्टेयर्स में होते हैं। तो वैसे सेंस में डेटा को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है पेपर पे। तो डेटाबेस सिस्टम आपको ये हेल्प देता है जिसके थ्रू आप कोई भी इन्वेंट्री करते हैं और उसकी क्या लोकेशन होती है, आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी मैनेज। नेक्स्ट, the filing cabinet has all but been replaced by the database. सिंपल है कि जो भी चीजें हम लोग पहले स्टोर सेव करते थे, अब उसको हम लोग कंप्यूटर पे डेटाबेस के थ्रू हैंडल करते हैं, जिसके थ्रू हमारा डेटा रिट्रीवल आसान हो जाता है। देखिए सिंपल है, डेटाबेस का मीनिंग या यू कह सकते हैं डेटाबेस का एप्लीकेशन एक ही पॉइंट पे समझा जा सकता है कि डेटाबेस को हम लोग इसलिए बनाए हैं ताकि चीजों को हम अच्छे से मैनेज कर सकें। That is going to be convenient for the user to handle with the resources, and that is very essential. Next part, how many types of databases? Basically we will discuss all these topics in one by one other videos, but this is just a promo that how we are going to start with the database. So here is a number of types available in the database we are using. First one is that is called flat file system. Flat file system means as you are working with Notepad and WordPad application and store some set of information there, like your name, class, roll, section, if you are a student,
then that type of databases are considered as non-databases store contents. That's why it is also called flat file, because these databases do not have a standard of database. It is just a plain database that is filled or stored inside a particular set of file. That can be a txt file, that can be a doc file, that can be different types. Flat files are not as popular as relational databases. अब यहाँ पे सेंस क्या है, फ्लैट फाइल को डेटाबेस में हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लैट फाइल में आपका डाटा ओपन होता है, देयर इज नो प्राइवेसी, एनीवन कैन ओपन इट एंड रीड इट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम रिलेशनल डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं, देन वी हैव नंबर ऑफ फीचर्स, जैसे कि आपका यहाँ डेटा सिक्योर होता है। फर्स्ट पॉइंट, आपके डेटा की सिक्योरिटी होती है और साथ में आपके यूजर का प्राइवेसी होता है। Whatever your private data is stored inside a relational database can be accessed only by you or by the admin. Next, relational database are databases with related tables of information. Actually, in the computer, whatever you are going to store, it can be possible in three ways. First one is 1D, one-dimensional data, like your name. 2D means series of data, means the data is stored in number of row and column, like your name, class, just a second, section, and etc. So this is called 2D database. What about 3D? 3D means not only three-dimensional, it is multi-dimensional. As for example, you are storing योर क्लास डेटा, दैट इज टू डायमेंशनल। जैसे कि आपका नाम, मैंने नेम का स्पेलिंग गलत लिख दिया, नेम, जैसे कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्लासमेट है, उनका डाटा आप स्टोर करते हो, तो ये 2D फॉर्म हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो आपके स्कूल के सारे क्लास, सारे सेक्शन का डाटा जब आप स्टोर करते हैं, तो वो हमारा मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। ये कैसे होता है आगे जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जब कभी भी आप मल्टीपल टेबल्स को कोऑर्डिनेट कराते हैं या मल्टीपल डाटा को स्टोर कराते हैं, तो वैसे सेंस में डाटा हमारा 3D फॉर्म में जाता है। ये चीजें क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग। ईच टेबल हैज अ नंबर ऑफ कॉलम एंड एट्रीब्यूट। बेसिकली कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, एंड देन आफ्टर रिकॉर्ड्स को यहाँ टपल बोलते हैं। आगे आएंगे हम ये सब चीजें जानेंगे। रिलेशनल डेटाबेसेस आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ यूज। देखो, चीजों को पॉपुलर बनाने का रीजन है कि आप जब इस सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो आपके पास एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है। स्टैंडर्डाइजेशन कहने का सेंस, जैसे एज फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड traveling around the world, which language should I use? Of course English. English is a very common, so everyone in this world can understand my language. तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन टर्म हो गया। सेम प्रोसेस में डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होती है, जिसको हम लोग एसक्यूएल स्टैंडर्ड बोलते हैं। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्या है, उसमें कितने तरह के लैंग्वेजेस होते हैं और कितने तरह के कमांड्स होते हैं, ये सब चीजें आगे आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे रिलेशनल डेटाबेस का पॉपुलर होने का रीजन क्या है। दैट मीन्स कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और इजी ऑफ यूज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेनिफिट। नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में ही बनाया कि databases are stored digitally. Multiple user in different location can view the data in more than one place. कहने का सेंस, अभी मैंने ये YouTube वीडियो बनाई है, ठीक है, मैं भी अपने घर में बैठ के बना रहा हूँ, बट आप जिस भी लोकेशन से आप इसको देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस। ये डेटाबेस के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। एंड दूसरी चीजें भी है, इंटरनेट है, देन आफ्टर आपका वेब ब्राउजर है। दीज आर द टूल्स, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सेसिंग योर डाटा simply. Because bank store their customer information and balances in database, you can use any branch for deposit and withdrawal. जैसे as for example, I live in Gaya, Bihar, and I am using my ATM card in Delhi, Kolkata, Mumbai, and whatever the places in India. That is possible because of bank uses database. Next one, database allows more flexibility
बिकॉज दे आर इन अ डिजिटल फॉर्मेट। अब फ्लेक्सिबिलिटी का सेंस क्या है? अब जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेपर बेस्ड सिस्टम है, आप उसमें काम करते हैं, तो नॉर्मली क्या है, यू हैव अ limited range of area to work. First point. Second point, all these things are manual. That is very tedious to maintain. Whenever you are mistaking or over the particular area, you have to correct it. There is no any modification is available in the database. Your data and your records, your each and everything is flexible because you can modify any set of data anytime and anywhere. Next, an important thing that make the very much differences between paper-based system and computerized system. First one is, in the manual system, each and every calculation must be done manually. But when we are going through digital or computerized record keeping system or database, it is fully automatic. You just have to apply function or some set of instruction, some set of statements in your database system that make calculation automatic. Next, companies use databases for inventory and item pricing. A retail chain can see when stores are low in inventory and automatically order more. Next, prices can be updated across the country instantly as compared to having them manually do it each store. Normally, as for example, आज पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो अब हर पेट्रोल पंप पे उनके सिस्टम में जाकर के मैनुअली हमें प्राइस को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आज के डे में क्या है, एक सिस्टम पे बैठ के हम लोग प्राइस को आइडेंटिफाई कराते हैं और पूरे स्टेट, पूरे डिस्ट्रिक्ट या जितने भी सिस्टम है हमारे पास, जितने भी पेट्रोल पंप है, सब जगह प्राइस एक जैसा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है रिटेल मार्केटिंग। जैसे बिग बाजार है, जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स हैं, आप वहां जो भी चीजें प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 40% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, किसी पे 60% का डिस्काउंट हो गया, उसमें कोई चेंजेस हो गया, तो आपको बारी बारी मैनुअली जाके काम करना पड़ेगा। बट इफ यू आर वर्किंग विद द डेटाबेस सिस्टम, you don't have to go anywhere. You just have to change the value from the one computer and that will be applied for the entire system. That is the benefit of database. Next one, database are used to distribute data quickly and easy because they are only updated once and can be read by many user. ये सबसे बड़ी बात है। अब जैसे as for example, I am working on this computer. This computer can serve one user at a time. But अगर हम बात करते हैं कि अगर इस कंप्यूटर को मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर दूं, तो सेम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हम किसी और कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, कनेक्ट करनी पड़ेंगे इन सारे कंप्यूटर्स को। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नहीं है ये, यहाँ पे मैं समझाना ये चाहता हूँ कि डेटाबेस सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में होता है। सो इफ यू हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ योर डेटाबेस, यू कैन मेक एनी करेक्शन और चेंजेस in the database system from anywhere in the world at any time. I will discuss on this particular topic later. So let's continue watching this video. I will update new video soon. Thank you.